یہ ہے وقت میڈیا. پیش خدمت ہندوستان کے صنعتی اور ادبی شہر مراد آباد میں ہوا جشن صحت منور رانا آل انڈیا مشاعرے اور کبھی سمیلن کا شاندار ویڈیو. اس مشاعرے کو آرگنائز کیا سہیل حسن خان ویلفیئر سوسائٹی مراد آباد نے. اس میں شرکت کی آپ سب کی فیورٹ شاعرہ محترمہ شبینہ ادیب صاحبہ نے. پہلے انہوں نے کچھ دل کی باتیں کی اپنی غزلوں کے ذریعے، لیکن اس کے بعد پھر دلی کی خبر بھی لی، سوٹ بوٹ کی بات بھی کری اور اچھے دن کب آئیں گے اس پر بھی انہوں نے طنز کسا. جی ہاں، یہ ویڈیو دیکھیں گے، لیکن پہلے جنگوں کی بات 40 سیکنڈ میں. انتاکشری اور گیمز کا ایپ 60 سال کے بوڑھے یا 16 سال کے جوان، آپ سب کے لیے ہے جینگو بنانا کا یہ پیغام. آج ہی اپنے موبائل میں گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں جینگو بنانا. جی ہاں، جینگو بنانا گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں، لکھیں JANGOBANANA اور کھیلیں انتاکشری اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں اور اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ دنیا کے کسی بھی کونے سے کبھی بھی. سنے سنائیں فلمی گیت اور مزہ لیجئے رومانٹک سیٹ اور فنی شاعری کا، ساتھ ہی جوکس اور بھی بہت سے نئے گیمز آپ کا انتظار کر رہے ہیں جینگو بنانا پر. بہرحال پپلو لکھنوی ہمارا یہ مشاعرہ جشن منور رانا، جس کی صدارت کر رہے ہیں جناب نجم الاسلام صاحب ایکسپورٹر، اور جس کے روح رواں ہیں یوسف ملک صاحب اور ان کی ٹیم. منظر ایسا بنتا ہے کہ ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس، ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں. یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی، لیکن لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں. تو ہم محبت کی جو کہانی لکھ رہے ہیں اس میں یہ چاہتا ہوں کہ اگلا برس بہت ہی خوبصورت، بہت ہی شائستہ ہماری بہن شبینہ ادیب کے نام کا جڑے. شبینہ ادیب ہندوستانی مشاعروں کی وہ شاعرہ ہے جس کی شہرتوں کے پرچم سرحد پار بھی لہراتے ہیں. ایک بار دل استقبال کیجیے، اس لیے کہ شبینہ ادیب نہ جگر منچ کے لیے نئی ہے اور نہ آپ ان کے لیے. جناب صدر، میں سن نہیں پایا. میرے بڑے بھائی منور رانا صاحب، جن کا جشن اللہ کا بہت بڑا کرم، اس کا شکر ہے کہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج میرے بڑے بھائی منور رانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہم سب ان کے لیے اور دعا کریں کہ اللہ نہ کرے کہ اب ان کو کبھی کچھ ایسی کوئی بیماری ہو کہ ان کو کبھی ہلکی سردی سے زکام بھی کبھی ہو، اور جو کچھ بھی ہو وہ مجھے ہو جائے لیکن میرے بھائی کو کبھی نہ ہو. اس دعا کے ساتھ کیونکہ میں خوش نصیب ہوں، آپ یقین جانیے انہوں نے جس کو بہن کہہ دیا تو بہن جیسا فرض نبھایا بھی، یہ میں بھی جانتی ہوں. مجھے کچھ کہنے کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال آپ سب کی دعا چاہتی ہوں، کئی بار آپ سب کے بیچ آئی ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اسرار موجود ہیں، قدردان موجود ہیں، بڑی خوبصورت سماعتیں ہیں. میرے شعراء کرام میں سب سے ادنا سی چھوٹی سی شاعرہ نسیم باجی، میری بڑی بہن سریتا شرما صاحبہ، جن کی دعائیں، جن کی محبتیں بارہا مجھے نصیب ہوتی ہیں. میرے بڑے بھائی منصور بھائی، آپ سب کا حکم میری حاضری، سیدھے سیدھے 4 مصرے پڑھنا چاہتی ہوں. التجا ہے کہ بس جڑنے کی کوشش کیجیے گا میری شاعری سے، تاکہ میں بھی اسی حوصلے سے آپ کے لیے شعر پڑھ سکوں. سنیں. میرے ہونٹوں پہ شکایت بھی نہیں آئے گی، میرے ہونٹوں پہ شکایت بھی نہیں آئے گی، سامنے سب کے حقیقت بھی نہیں آئے گی، سامنے سب کے حقیقت بھی نہیں آئے گی.
जानिए मेरा भी देख रहे क्या हालत हो गई, क्योंकि वो दुआ मैंने अपने लिए ही मांगी थी, लेकिन दुआ करते हैं कि मैं पढ़ सकूं। बस मुझे बेवफा कह दीजिए मर जाऊंगी, आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी, आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी, आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश करती हूँ कि शायद जब मैं पढ़ती रहूँ तो मेरा गला ठीक हो सके, क्योंकि मेरे ऊपर थोड़ा सा वायरल चल रहा है, मैं कई दिनों से मैं भी थोड़ा सा बीमार हूँ, लेकिन उम्मीद है कि कुछ पढ़ सकूंगी और आप सुन सकेंगे। मैं कोशिश करती हूँ कुछ ताज़ा अशार चाहती हूँ जो मैंने आज तक कभी नहीं पढ़े, वो यहीं से पढ़ूं, ताकि जहाँ जहाँ भी जाती हूँ हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर मैं पढ़ सकूं। अच्छा, मेरे भाई का हुक्म है। नहीं, मैं पेश करती हूँ एक मतलब, ऐसा कीजिएगा, कोई बात नहीं, दुआ दीजिए, ये पानी की तरह काम करेंगे, कोशिश करूंगी। मेरे बड़े भाई, मेरे करम फरमा मंसूर भाई का हुक्म है, एक मतलब और एक शेर के लिए मुझे पढ़ना भी चाहिए और पेश करती हूँ। जी मैं पढ़ती हूँ चचा, आप परेशान मत हो। रंजिशों में कब इंसान सोगवार रहता है, रंजिशों में कब इंसान सोगवार रहता है, दिल मोहब्बतों में ही बेकरार रहता है, दिल मोहब्बतों में ही बेकरार रहता है। एक शेर पढ़ती हूँ। लौट कर नहीं आता कब्र से कोई, लेकिन लौट कर नहीं आता कब्र से कोई, लेकिन प्यार करने वालों को इंतजार रहता है, प्यार करने वालों को इंतजार रहता है। आपने मुझ जैसी शायरा को दुआ दी और देखिए मैं शायद कोशिश कर रही हूँ कि मैं ठीक तरह से पढ़ सकूं। और चार मिसरे मुलाहिजा कीजिए, बिल्कुल ताज़ा अपने द्वारा की शिरकत और उनकी दुआएं चाहती हूँ, ये भी पेश करती हूँ, सुनिए। पेशानी की सिलवट से जुर्अत से नहीं चलता, पेशानी की सिलवट से जुर्अत से नहीं चलता, हर काम ज़माने में ताकत से नहीं चलता, हर काम ज़माने में ताकत से नहीं चलता। होठों पे हंसी लेकर घर जाया करो लोगों, होठों पे हंसी लेकर घर जाया करो लोगों, घर प्यार से चलता है दौलत से नहीं चलता, घर प्यार से चलता है दौलत से नहीं चलता, घर प्यार से चलता है दौलत से नहीं चलता। बहुत बहुत शुक्रिया। और कोशिश करती हूँ कि और कुछ आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा कि यही बात खुद समझना, मतलब और एक शेर, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना, जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना, जो गुरूर में हो डूबा, यही बात खुद समझना। बहुत बहुत शुक्रिया। यही बात खुद समझना, यही बात आम करना, जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना। मैं बस इतना चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में, मैं बस इतना चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में, न
خوشی لٹانا نہ سکون حرام کرنا نہ بہت خوشی لٹانا نہ سکون حرام کرنا. بہت بہت شکریہ. ایک غزل سنانا چاہتی ہوں. پہلی مرتبہ آپ سب کی خدمت میں یہ غزل پیش کر رہی ہوں. ملاحظہ کیجئے, کوشش کرتی ہوں کہ آپ کی دعائیں اسی طرح سے اسی بھرپور طریقے سے مجھے مل سکیں. جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری آواز سے آواز ملائیے اور اس سچ کی تائید کر دیجئے. آج پوری دنیا کا منظر دیکھیے, پوری دنیا کے حالات دیکھیے. میں جو مطلع پڑھنا چاہتی ہوں میں ضرور انشاءاللہ حکم ہے میرے لیے, میں اس کی بھی تعمیر کروں گی, لیکن اس سے پہلے میں اجازت چاہتی ہوں آپ سے. ایک غزل پڑھنا چاہتی ہوں جس کا مطلع پوری دنیا کا منظر اپنے ذہن میں رکھیے اور میرا یہ مطلع ملاحظہ کیجیے. آپ سب کی شرکت چاہتی ہوں. سنیں. نہ دوستوں کے کرم رہیں گے نہ دشمنوں کے ستم رہیں گے. سنیں. نہ دوستوں کے کرم رہیں گے نہ دشمنوں کے ستم رہیں گے. فنا کے نزدیک ہے یہ دنیا نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے. مجھے اچھا لگا کہ آپ نے اس مسئلے کو بھرپور طریقے سے سنا اور مجھے اپنی دعائیں دی. شکر گزار ہوں. میں پھر سے پڑھتی ہوں. نہ دوستوں کے کرم رہیں گے نہ دشمنوں کے ستم رہیں گے. فنا کے نزدیک ہے یہ دنیا نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے. نہ دوستوں کے کرم رہیں گے. شعر پڑھتی ہوں. جہاں جہاں تک میری آواز صحیح ہے ملاحظہ کیجیے گا, دیکھیے گا. مجھے یقین ہے میری محبت نے تم کو اپنا بنا لیا ہے. مجھے یقین ہے میری محبت نے تم کو اپنا بنا لیا ہے. سکون سے تم بھی نہ جی سکو گے اگر میرے دل میں غم رہیں گے. کرم رہیں گے. بہت بہت شکریہ. نہ دشمنوں کے ستم رہیں گے. شعر پیش کرتی ہوں, ملاحظہ کریں کہ مصیبتوں سے لڑے گا جو بھی اسی کو رات آئے گی خوشی بھی. مصیبتوں سے لڑے گا جو بھی اسی کی رات آئے گی خوشی بھی. ہمیں نے بستی کی خاک چھانی بلندیوں پر بھی ہم رہیں گے. نہ دوستوں کے کرم رہیں گے نہ دشمنوں کے ستم رہیں گے. ایک شعر اور پڑھتی ہوں. جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ملاحظہ کریں. کوشش کرتی ہوں, حوصلہ کرتی ہوں کہ پھر سے اچھی طرح سے پڑھ سکوں. پیش کرتی ہوں کچھ. دیکھیں. خدا کے بتلائے راستوں پر اگر ہم اپنے قدم بڑھائیں. خدا کے بتلائے راستوں پر اگر ہم اپنے قدم بڑھائیں تو پھر زمانے میں سب سے اونچے ہمارے اپنے علم رہیں گے. نہ دوستوں کے کرم رہیں گے نہ دشمنوں کے ستم رہیں گے. مقطع پیش کرتی ہوں. جس طرح بھی پڑھ رہی ہوں آپ سب سماعت کر رہے ہیں. یہی بہت بڑا احسان ہے آپ کا. مجھے دعا دے رہے ہیں, یہ بہت بڑا کرم ہے اللہ کا. میں پیش کرتی ہوں, ملاحظہ کریں کہ ہے سیرت فاطمہ نظر میں سہیں گے ہر غم خوشی سمجھ کر. ہے سیرت فاطمہ نظر میں سہیں گے ہر غم خوشی سمجھ کر. وفا کی راہوں میں ہم شبینہ ہمیشہ ثابت قدم رہیں
करम रहेंगे, ना दुश्मनों के सितम रहेंगे। और आइए, मेरे लिए एक हुक्म है तो मैं 2-3 शेर कोशिश करती हूँ कि पढ़ सकूँ, और इजाजत दे दें तो मैं पानी भी पी लूँ तो शायद मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद पानी पीऊंगी। मेरे भाई का हुक्म है कि है सीरत फातिमा नजर में सहेंगे हर गम खुशी समझ कर, बाबा की राहों में हम शबीना हमेशा साबित कदम रहेंगे, न दोस्तों के करम रहेंगे, ना दुश्मनों के सितम रहेंगे। पेश करती हूँ, मुलाजा कीजिएगा, देखिएगा। जो है नसीब में वो कम नहीं निकलता है, जो है नसीब में वो कम नहीं निकलता है, हमारे दिल से तेरा गम नहीं निकलता है, हमारे दिल से तेरा गम नहीं निकलता है। बतौर खास ये शेर कि सभी की प्यास को एजाज ये नहीं मिलता। सुने, सभी की प्यास को एजाज ये नहीं मिलता, सभी की एड़ी से ज़मज़म नहीं निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी की एड़ी से ज़मज़म नहीं निकलता है, और कहाँ है आजा कि अब मैं सुकून से मर तो सकूं। सुने, कहाँ है आजा के अब मैं सुकून से मर तो सकूं, तेरे बगैर मेरा दम नहीं निकलता है, तेरे बगैर मेरा दम नहीं निकलता है। देखिए, पढ़ना ताज़ा कलाम चाहती थी, लेकिन चचा ने हुक्म दिया है तो बहरहाल मुझे कुछ पढ़ना है। ये बदल दे तो मुझे खतरा है ये चचा गालिब न बन जाए। कई बार मैंने उस वक़्त को पढ़ा है आप सबकी खिदमत में। हुक्म है, मैं पेश करती हूँ। दुआएं मिल रही हैं मुझे, SSP साहब बैठे हैं, अफसरान, बहुत सारे हमारे अपने दिल की दुआएं मोहब्बतें मुझे मिल रही हैं। बहरहाल मैं इजाज़त चाहती हूँ और मैं पेश करती हूँ। सुने, खामोश लब है झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, खामोश लब है झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है, खामोश लब है झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, अभी न आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी न आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज़्यादा, अभी ये चाहत नई नई है, खामोश लब है झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। एक शेर जो पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर हुआ, मैं खुश नसीब हूँ कि आप सब मुझे हुक्म देते हैं, मैं आप सबके हुक्म की तामील करती हूँ। वो शेर आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। सुने, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, जो खानदानी
अच्छी तरह से और इतने सलीके से सुन लिया, ये वाकई बहुत बड़ा करम है और एहसान है आपका। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब है चुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। एक शेर और पढ़ती हूँ। ये शेर मैंने अपने कुछ शौरा के लिए, कुछ ऐसे शायर जो हमारी तहजीब को, हमारे कल्चर को मजरूह कर रहे हैं, यानी कि खत्म कर रहे हैं। आज बड़े लोग पीछे बैठे हैं, हम जैसे छोटे लोग आगे बैठते हैं, ये तहजीब के खिलाफ है, लेकिन कभी कभी हमें मजबूरन बैठना पड़ता है। कुछ ऐसे शौरा को मैंने अपने शेर में शरीक किया है जो हमारे कल्चर को, हमारी तहजीब को मजरूह कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। जो कुछ भी मन में आता है माइक पे बोलते भी हैं। पेश करती हूँ, ऐसे लोगों को शरीक करती हूँ अपने शेर में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आज बैठे हो पहली सफ में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आज बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई। मैं पढ़ती हूँ, अफसरान का हुक्म, आप सबका हुक्म पेश करती हूँ। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। खामोश लब है झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बमों की बरसात हो रही है, पुराने जाबाज सो रहे हैं। बमों की बरसात हो रही है, पुराने जाबाज सो रहे हैं। गुलाम दुनिया को कर रहा है वो जिसकी ताकत नई नई। और सुनेंगे। देखिए, सबीना आ गई है, वो बहुत सादतमंद भी हैं और बहुत समझदार भी। मुख्तसर सा कुछ कलाम जी, वो पर्चा आपका दे दिया। अरे चर्चा ताजा गजल सुनाई आपको। अब चर्चा भतीजी से जब इस तरह की बात करेंगे तो ये तो बड़े अफसोस की बात। ये बात सही है। मैं नहीं, देखिए आपने ही मुझे हुक्म दिया है कि मुझे ये गजल को पढ़ना है। बहरहाल एक हुक्म है मेरे लिए। ये असल में नए जमाने के चचा हैं। हमारे जमाने के चचा होते तो हम उनकी मौजूदगी में मुशायरे में भी नहीं आते। मैं पेश करना चाहती हूँ, पेश करती हूँ। मैं जानती हूँ कि चचा मेरे क्या सुनना चाहते हैं। मैं पढ़ूँ? सुनिए चचा, मुझे आपने जो हुक्म दिया है मैं वही पढ़ रही हूँ। पढ़ना कुछ और चाहती थी, आप सबसे इजाजत चाहती हूँ। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप पहुँचेंगे। मैं सीधे सीधे चार मिसरे पेश करती हूँ। ये भी ताज़ा चार मिसरे हैं, मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा। मशक्कतों में कहाँ ऐश वो जो लूट में है। पहुंचिएगा आप वहां तक। मशक्कतों में कहाँ ऐश वो जो लूट में है। जमाना उलझा हुआ रहबरों के झूठ में है। जमाना उलझा हुआ रहबरों के झूठ में है। बहुत से लोग यहाँ बेलिबास हैं, लेकिन बहुत से लोग यहाँ बेलिबास हैं, लेकिन गरीब मुल्क का रहबर तो सूट बूट
में है, गरीब मुल्क का रहबर तो सूट। फिर से पढ़ूं? आप पहुंचे, आपका शुक्रिया मैं पेश करती हूँ। मशक्कतों में कहाँ ऐश वो जो लूट में है, जमाना उलझा हुआ रहबरों के झूठ में है। बहुत से लोग यहाँ बेलिबास हैं, लेकिन गरीब मुल्क का रहबर तो सूट बूट में है, गरीब मुल्क का रहबर तो सूट बूट में है। पेश करती हूँ, आइए। चुनाव से पहले, इलेक्शन से पहले पेपर मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर किसी की जबान पर, चैनल्स पर सिर्फ एक ही आवाज, सिर्फ एक ही बात कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। इलेक्शन हुए, हर कोई एक दूसरे से ये पूछता है कि अच्छे दिन कब आएंगे। अगर मैंने बताने की कोशिश की है तो आपने जिसके लिए हुक्म दिया है, आप इस सच्चाई की तारीफ भी उसी तरीके से करेंगे, ताकि मैं इस गीत को भी उसी हौसले से आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा, आप सबकी आवाज बनकर मैं आप सबकी खिदमत में ये गीत पेश करना चाहती हूँ, पेश करती हूँ। मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा। अच्छे दिन तब आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे, जब भारत को लूटने वाले, जब भारत को लूटने वाले जेल की रोटी खाएंगे। मुझे पता था कि आप यही सुनना चाहते हैं, शुक्रगुजार। अच्छे 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 दिन तब आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे, जब भारत को लूटने वाले जेल की रोटी खाएंगे। अच्छे दिन तब आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे। देखिए, पेश करती हूँ। आटा चावल इतना महंगा, आम इंसान क्या खाएगा। आटा चावल इतना महंगा, आम इंसान क्या खाएगा। इस धरती को सुकून उसी दिन, चैन उसी दिन आएगा। इस धरती को सुकून उसी दिन, चैन उसी दिन आएगा। रेल किराया बढ़ाने वाले, रेल किराया बढ़ाने वाले जब पैदल हो जाएंगे। शुक्रिया। अच्छे दिन तब आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे। और झूठे वादे करके इन्होंने चाहा था जम जाना, झूठे वादे करके इन्होंने चाहा था जम जाना। हमें यकीन है उठेगा इनका जल्द ही वो दाना, हमें यकीन है उठेगा इनका जल्द ही वो दाना। दिल्ली छोड़ के ये भी लुटेरे, दिल्ली छोड़ के ये भी लुटेरे एक दिन वापस जाएंगे। अच्छे दिन तब आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे। स्वच्छ भारत हम भी चाहते हैं, हमारा प्यारा सा हिंदुस्तान, हमारा अजीम हिंदुस्तान हमेशा स्वच्छ रहे। मैं पेश करती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा। चाय पीते रहिए, चाय वाले को मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, मैं सिर्फ गीत पढ़ सकती हूँ। मुलाहिजा करें। अच्छे दिन तब आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे। सुने, झाड़ू लेकर जब वो निकले, झाड़ू लेकर जब वो निकले धूल भरी सड़कों पर, हमसे हमारे दिल ने भी ये बात कही हंस हंस कर। हमसे हमारे दिल ने भी ये बात कही हंस हंस कर। धूल उड़ाने वाले सारा, धूल उड़ाने वाले सारा मार उड़ा ले जाएंगे। अच्छे दिन तब आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे। और कहा था काला धन लाएंगे, कहा था काला धन लाएंगे। सोना होगी
हमें नहीं उम्मीद के ला पाएंगे एक पैसा भी। काला धन ये ले भी आए तो खुद ही खा जाएंगे। अच्छे दिन तब आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे। एक पल मैं पेश करना चाहती हूँ, इस गीत का सबसे खूबसूरत पल आप सबकी खिदमत में, आप सबकी दुआएं चाहती हूँ, पेश करती हूँ। देखिएगा बतौर खास मैं अफसरान की भी शिरकत चाहती हूँ, उनकी दुआएं चाहती हूँ, आप सबकी भी शिरकत चाहती हूँ और पेश करती हूँ कि हम हो, तुम हो, ये हो, वो हो, या हो देश के रहबर। हम हो, तुम हो, ये हो, वो हो, या हो देश के रहबर। मिलेगा जो सबसे झुक कर वो रहेगा ऊंचाई पर। मिलेगा जो सबसे झुक कर वो रहेगा ऊंचाई पर। जो मगरूर है वो सब एक दिन, जो मगरूर है वो सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। वाह वाह वाह। ये हमारी बहन शबीना अकीब हमारे ऐद की मकबूल शायरा अच्छी अच्छी गजलें सुनाई, यानी कि दिल की कहानियां सुनाई, बाद में सियासत की नादानियां भी सुना दी। और यही शायर का कमाल भी होता है। मैं अपनी फहरिस्त के लिहाज से ही चाहता था कि इमरान प्रताप गनी से गुजारिश करूं, मगर एक लड़का है। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब मोहम्मद अहमद खान साहब और इस मुशायरे के दूसरे कन्वीनर रहे जनाब शुएब हसन खां पाशा साहब। शहंशाह गजल जिगर मुरादाबादी के शहर मुरादाबाद में हुए इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन को आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब मुनव्वर राना साहब के एजाज में जश्न सेहत मुनव्वर राना के उन्वान से मुनक्किद किया गया था। इस मौके पर सोहेल हसन खां वेलफेयर सोसाइटी ने जनाब मुनव्वर राना साहब को उनकी उर्दू खिदमात के लिए 1 लाख रुपए नकद देकर एजाज से नवाजा। इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया सोहेल हसन खां वेलफेयर सोसाइटी ने। सोहेल हसन खां मुरादाबाद के मशहूर और मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत थे। जी हां, जनाब सोहेल हसन खां साहब समाजवादी पार्टी मुरादाबाद के पूर्व महानगर अध्यक्ष जनाब शुएब हसन खां पाशा के वालिद मोहतरम थे। सोहेल हसन खां वेलफेयर सोसाइटी मुरादाबाद के अध्यक्ष हैं जनाब रईस खान साहब, उपाध्यक्ष हैं जनाब शहजाद कमर साहब, सचिव हैं जनाब शुएब हसन खां पाशा साहब, कोषाध्यक्ष हैं जनाब मोहम्मद अहमद खान साहब, सचिव हैं जनाब सलीम अहमद वारसी साहब, सह सचिव हैं जनाब मोहम्मद खालिद साहब और सह सचिव हैं जनाब मोहम्मद नदीम साहब। इन सभी हजरात ने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में अपना नुमाया किरदार अदा किया। मुशायरे के कन्वीनर जनाब मोहम्मद अहमद खान साहब, मुशायरे के कन्वीनर जनाब शुएब हसन खां पाशा साहब, उन सभी हजरात का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में उनका सपोर्ट किया। मैं हूं आपका दोस्त शफीक खान और यह है मुरादाबाद की तारीखी जामा मस्जिद। जी हां, हम आप तक लेके आते हैं मुशायरे, लेकिन इस वक्त जामा मस्जिद के हवाले से, मुरादाबाद की जामा मस्जिद के हवाले से आपको एक जानकारी दे दूं। पूरे हिंदुस्तान में यूं तो कई जामा मस्जिदों में आप गए होंगे, मस्जिदों में आप गए होंगे, लेकिन इस तारीखी जामा मस्जिद की खास बात यह है कि ये इकलौती जामा मस्जिद है जो किसी नदी किनारे वाक़ है। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये नदी जिसे कहते हैं हम राम गंगा नदी। बहरहाल कल रात आपने देखा जिगर मंच से एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा और कवि सम्मेलन आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द आप ये पूरा मुशायरा हमारी वेबसाइट www.mushairalive.com पर देख सकते हैं। जी हाँ, अगर आप हमें सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो फिर आप इस वेबसाइट पर विजिट करें और YouTube चैनल पर पहुंच जाएं और वहां आप जीमेल से हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको घर बैठे
मुशायरे के वीडियो मिले तो अब हम व्हाट्सएप पे भी आ चुके हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। हफ्ते में 2 वीडियो आप तक पहुंचा दें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुशायरे के वीडियो हमारी टीम जो कवर करती है उसके देखे जाते हैं। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन उमेर के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, शहर जिगर मुरादाबाद से।